کچھ لوگ ہیں جو چاول کھاتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جن کا انحصار آٹے پر ہے۔ کہتے ہیں شیخ مجیب کو جب جیل میں ڈالا گیا تو اسے روٹی دی گئی تو اس نے منہ نہیں لگایا، کیونکہ وہ پانی میں گھرا ہوا ملک ہے، وہ مچھلی پکڑتے ہیں، چاول پکاتے ہیں، اوپر پکا ہوا سالن ڈالتے ہیں، اور اتنی مہارت سے وہ کھاتے ہیں کہ کانٹے نہیں نکالتے، ویسے ہی کھاتے جاتے، ادھر سے کانٹے نکلتے جاتے خود بخود۔ اس کو جب چاول اور مچھلی دی گئی تو وہ خوش ہوا۔ لیکن ہم لوگ گندم کے آٹے کے بغیر نہیں رہ سکتے، وہ مہنگا بھی ہو تو ہم استعمال کرتے ہیں۔ ایک بات آپ ذہن میں رکھیے کہ پاکستان میں اسمگلنگ کا لفظ بار بار استعمال ہوتا ہے، کبھی چینی کے لیے، کبھی آٹے کے لیے، اور سب سے زیادہ آٹے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یا تو پاکستان کا تورخم بارڈر جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہے اور 53 کلومیٹر لمبا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پہاڑ کاٹ کے جو راستہ بنایا جاتا ہے اس کو انگریزی میں پاس اور اردو میں درہ کہتے ہیں، اور جو چھوٹی پہاڑی کاٹ کے راستہ بنایا جاتا ہے اس کو گلی کہتے ہیں، جیسے گلیڑا گلی، جھیکا گلی، گھوڑا گلی، یہ 9 گلیات ہیں پنڈی کے قریب قریب۔ تو میں بات کر رہا تھا درہ خیبر کی، یا تو وہاں سے آٹا سمگل ہوتا ہے، یا پھر کراچی کے ٹیڑھے میڑھے راستوں سے چھپ چھپا کے آٹا افغانستان بھیجا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں آج آٹا کم و بیش 5,000 من روپے تقریباً فروخت ہوتا ہے، اور افغانستان کے اندر چونکہ جنگ کے بعد بہت تباہی مچی، اتنا اسلحہ اور بارود وہاں گرایا گیا کہ فصلیں نہیں ہوتی۔ جب فصلیں ہوتی تھی تب بھی گندم کی ضرورت ہوتی تھی، تو ہمارے جو ساہوکار ہیں، ہمارے جو بڑے بڑے ٹھیکیدار ہیں، وہ یہاں سے اونے پونے گندم خرید کے سمگل کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے تو جگہ جگہ دیکھا، ہمارا یہ جہانیہ کا سرائے جہانیہ کے قریب پاسکو کے گودام ہے، سارا سال یہاں گندم رولتی رہتی ہے، پڑی رہتی ہے۔ یہ ہمارے کرمشاہ چوک کے قریب گودام ہے، وہاں ہر وقت گندم پڑی رہتی ہے۔ یہ وہاڑی کی طرف آپ جائیں تو جگہ جگہ آپ کو گودام نظر آئیں گے۔ پھر وہاڑی کے انٹرنس پہ اس طرف سڑک کے گودام موجود، یہ موجود جب ہوتے ہیں جگہ جگہ، یہ تو میں قریب قریب کی بات کرتا ہوں، ہر جگہ پاکستان میں اتنی گندم ہوتی ہے، اللہ کا فضل ہے۔ کافی عرصہ پہلے ہمارے گاؤں میں ایک کسی مدرسے کے سفیر آئے تو وہ کہنے لگے میں اس علاقے میں پہلی مرتبہ آیا ہوں، تو میں نے بھائی پھیرو سے لے کے خانے وال تک پکے ہوئے گندم کے کھیت دیکھے، تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ پاکستان میں اتنا اعلیٰ قسم کی گیہوں یہ گندم بھی ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے ہم پہ۔ ہمارے کچھ علاقوں میں چاول پیدا ہوتا ہے جس میں شیخو پورہ ہے، ناروال ہے، پھر سیالکوٹ ہے، شیخو پورہ اور قریب قریب کے دیگر علاقے، یہ کائنات اعلیٰ قسم کی کائنات باسمتی، سپر کرنل باسمت۔ تو وہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں بہت سی نعمتیں پیدا ہوتی ہیں، اور سب سے بڑی گندم۔ جب پاکستان میں بھی گندم موجود ہوتی ہے، گندم آنا شروع ہوتی ہے تو گندم سمگل بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پاکستانی حکومت کوشش کے باوجود گندم روک نہیں پاتی، اور گندم پاکستان کی سرحد سے باہر جاتی رہتی ہے، اور مہنگے داموں وہ فروخت کر کے اپنا رانجہ راضی کرتے ہیں۔ اور پاکستانی آرمی ہو، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہو، اس پہ کنٹرول حاصل نہیں کرتی۔ کچھ لوگوں کا تو یہ بھی گمان ہے، میں اس پہ یقین کروں یا نہ کروں، میں لوگوں کی بات بتا رہا ہوں کہ شاید ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ شامل ہوتی ہے، اپنی منتلی لیتی ہے اور ٹرکوں کو گزرنے دیتی ہے۔ تو پاکستان مصنوعی بحران کا شکار
दिखाई देता है, जबकि वो गंदम जो इन गोदामों में पड़ी है, काश हम वो इस्तेमाल करें। वो गल सड़ जाती है, लेकिन हम बाहर से बड़ी महंगी गंदम कभी यूक्रेन से मंगवाते हैं, कभी किसी और मुल्क से मंगवाते हैं, और फिर हम वो महंगी गंदम इस्तेमाल करते हैं। तो क्या ही अच्छा हो कि हमारी ये एस्टेब्लिशमेंट, हमारे ये अफसरान बाला इन गोदामों को हवा लगाएं, इन गोदामों को हिलाए और यहाँ से गंदम निकाल के अपनी ज़रूरियात इससे पूरी करें। हम ये यहाँ गल सड़ जाती है। मुझे अच्छी तरह याद है कि अमेरिका में एक मरतबा गंदम का फसल बहुत अच्छा हुआ, तो वहाँ उन्होंने क्या किया कि किसानों का क्या कसूर, उन्होंने जो गंदम का स्टॉक पिछले साल का मौजूद था वो उठा के उन्होंने समंदर में फेंक दिया, और जो नई गंदम आई उसकी किसानों को मुनासिब कीमत अदा की जो उन्होंने ऐलान किया था। और जब किसान खुशहाल होंगे तो फिर वो अगले साल और मेहनत और तनदही से काम करके फिर अच्छे फसल के लिए तगदौ करेंगे। अब पिछले साल मकई की फसल बहुत अच्छी हुई, 3500, 4000, 4500 रेट था, तो इस मरतबा किसानों ने मकई की तरफ तवज्जो दी, तो अब मकई 1300, 1400, 1300, 1400 रुपए में बिक रही है। गोश्त पर कपास की निस्बत कम खर्च आता है, लेकिन फिर भी बीज खरीदना पड़ता है, फिर उसको जहर लगाना पड़ता है, फिर इसके वो पता नहीं उर्दू इसकी क्या है, पंजाबी में ख्वातीन कह रही होती हैं कि हम जी फलां मरबे में चौपे लगा रहे हैं, और इतना मुआवजा वो हमें पर एकड़ के हिसाब से देते हैं। तो ये अखराजात हैं, लेकिन इसके बावजूद इस बार इसका की सही कीमत नहीं मिल रही, जिसकी वजह से किसान परेशान है। जब किसान परेशान है तो किसान उतनी दिलजमी से काम नहीं करता जितना पहले उसने किया था। हमारे यहाँ कौन सी फसल नहीं होती, हमारे यहाँ आलू बेहतरीन, ये साहिवाल की तरफ आप निकल जाएं, जैसे तूड़ी के कुप होते हैं, तूड़ी महफूज की जाती है, इसी तरह आलू के कुप बने होते हैं, और वो महफूज किया वहां से निकाल निकाल के मंडी फेंकते हैं। और हम लोग आलू इतना ज्यादा खाते हैं, गोभी में आलू, आलू में आलू, बैंगन में आलू, चावलों में आलू, चिप्स आलुओं की, और पता नहीं क्या क्या कुछ हम, लेकिन इसके बावजूद आलू भी हमें बाहर से मंगवाना पड़ते हैं। सब्जियां हमें बाहर से मंगवाना पड़ती है जो बहुत ज़्यादा महंगी है। बहुत से ममालिक ऐसे हैं जिनके हमसाया ममालिक से लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन कारोबारी सिलसिले बदस्तूर जारी रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ है कि हमने इंडिया से टमाटर नहीं खरीदने, हमने इंडिया से गुड़ और शक्कर नहीं खरीदनी, इसलिए कि उसने कश्मीर पे कब्जा किया हो। हम कश्मीर के लिए क्या कर रहे हैं? मकबूजा कश्मीर में 3 यूनिवर्सिटियां हैं, कोई सहूलियत नहीं है, कर्फ्यू लगा है, कोई सहूलत नहीं है, लेकिन मकबूजा कश्मीर में 40 यूनिवर्सिटियां हैं, और हर तरफ आपको अच्छी सड़कें दिखाई देती हैं। कुछ लोग साहिब बस्तो कुशाद, जिनको आप मुल्क की अशराफिया कहते हैं, जिनको आप मुल्क का की ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए लोग कहते हैं, उनमें से कुछ का कहना है कि हम कश्मीर आज़ाद नहीं देखना चाहते, इसलिए कि अगर कश्मीर आज़ाद हो गया तो फिर इंडिया और पाकिस्तान की डायरेक्ट जंग होगी, और इंडिया के जो जर्नैल हैं वो भी नहीं चाहते कि कश्मीर का मसला हल हो, वो भी पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट लड़ना नहीं चाहते। तो रोले तो इनके हैं और परेशानियां हमारे लिए हैं। दर्जनों लोग रोज़ाना वहाँ मर रहे हैं, खाने को कुछ नहीं मिलता, अ, हमारी माँओं बहनों बेटियों की इज्जतें पामाल हो रही हैं, और कभी कभी तो ऐसे मनाजर सामने आते, एक आदमी गाड़ी पे
कहीं अपने नवासे के साथ जा रहा था, इंडियन आर्मी ने उस पर फायर किया, वो मर गया तो उसकी लाश बाहर निकाल के रख दी। 4-5 साल का नन्हा सा बच्चा उस सीने पे बैठा हुआ उसको जगा रहा था कि नाना अबू उठे, हमने तो मार्केट जाना था, आपने तो हमें मुझे फुटबॉल खरीद के देना था। लेकिन उन्हें क्या पता कि उनके नाना जी अब वहाँ चले गए हैं जहाँ से अब वो उसकी बात भी नहीं सुन रहे। तो इन हालात में हम इंडिया से सौदाबाजी नहीं करते, हम दूसरे ममालिक से सब्जियां लाते हैं जो बहुत महंगी पड़ती है। ये खड़ा है इंडिया, अगर हम चाहें तो यहाँ से सौदा सर्फ और दीगर अशिया हम खरीद सकते हैं, लेकिन इस दुश्मनी की वजह से हम वहाँ से नहीं लाते। लोरा लाई यहाँ से बहुत दूर है, और मुझे अच्छी तरह याद है कि ये सेठ इकबाल का डाला हर रोज़ वहाँ उन दिनों में जाता है जब यहाँ सब्जियाँ नहीं होती। तो डेरा गाजी खां से होता हुआ वो लोरा लाई जाता है, पाकिस्तान के आखिरी सिरे से वो सब्जियां लेके आता है, तब जाके हमारी सब्जियों की ज़रूरत पूरी होती है। तो मैं बात कर रहा था पाकिस्तानी स्मगलिंग की, कि चीनी भी स्मगल होती है और चोर पकड़े भी जाते हैं, लेकिन उनसे कोई बात पुरस करने वाला नहीं है। ये जितने हमारे सियासतदान हैं उनमें से बेशतर यही काम करते हैं। आटे की स्मगलिंग हो तो यही वडेरे हैं, चीनी की स्मगलिंग हो तो यही वडेरे हैं, और अदालतों में जब केस चलते हैं तो फिर कुछ लो और कुछ दो पे बात ख़त्म हो जाती है, और बाद में वो बड़के मारते फिरते हैं कि देखा हमसे एक दाना भी चीनी का बरामद नहीं हुआ, हमसे एक दाना भी गंदम का बरामद नहीं हुआ, जबकि अंदर खाते बहुत कुछ हो रहा है। अल्लाह ताला हमें अपनी मादरे गीती, मादरे गीती से मुराद अपना मुल्क, मादरे वतन, इससे मोहब्बत की अल्लाह ताला तौफीक दे। अगर हम अपने मुल्क के लिए सोचेंगे तो वो गंदम, वो चीनी यहीं इस्तेमाल होगी, वो बाहर ना भेजी जाए तो पाकिस्तान में किसी चीज़ का बहरान पैदा ना हो। हम जब दूसरे ममालिक से, वो लोग जो दूसरे ममालिक से सौदा करते हैं तो कमीशन हासिल करते हैं, तो दो दो और चुपड़ियाँ, ये हाल है उन लोगों का। एक तो वो उधर सौदा करके उनसे भी लेते हैं और इधर से भी अपना हिस्सा वसूल करते हैं, और इस तरह स्मगलिंग हमारे मुल्क को दीमक की तरह चाट रही है। तो इससे हमें गुरेज करना चाहिए। गंदम हो या चीनी हो या कोई और चीज़ हो, हमें स्मगल नहीं करनी चाहिए। वतन और कौम की मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम अपने मुल्क की अशिया अपने मुल्क में इस्तेमाल करें। जब हम अपनी अशिया खुद इस्तेमाल करेंगे तो हम बहुत जल्द खुशहाली की ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देंगे। वरना अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान का हर शहरी लाखों रुपए का मकरूज है। ये कर्ज कब उतरेगा, ये उतरता हुआ महसूस नहीं होता। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन।